Welcome to Language Logic, my dear learner. I'm Rahul Rajani, and today we're going to see speaking part 2 topic. The topic is describe something you did with someone or a group of people. You will see how to create an effective story to get 7, 8 or even 9 band in your original speaking test, right? But इससे पहले हम आगे बढ़े, I just want to say that अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरी डिस्क्राइब समथिंग दैट मेड यू फील प्राउड वो नहीं दिखी है, देन डोंट वरी, उसके पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों वीडियो के एट द एंड मैंने लिंक रखी हुई है, आप इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, राइट? सो लेट्स डाइव इन, बट उनसे पहले क्वेश्चन तो देख ले। कौन से क्वेश्चन है? व्हाट इट वाज, हु यू डिड इट विथ, हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू डू दिस एंड व्हाई यू डिड इट टुगेदर। चलिए स्टोरी देखते हैं। Okay, so story will go like this. One significant activity I undertook with a group of people was organizing a beach cleanup initiative in collaboration with a local environmental organization. The beach cleanup involved gathering a team of volunteers to remove litter and debris from a stretch of coastline known for its scenic beauty but also plagued by pollution. I organized and participated in this initiative with a group of friends, colleagues from work, and members of the environmental organization. We were a diverse group comprising people of different ages and backgrounds, all united by a shared concern for environmental conservation. The cleanup effort spanned over a weekend, with each day dedicated to several hours of hands-on cleaning and sorting of collected waste. We came together for several reasons. First was environmental impact, to contribute positively to our local environment by removing harmful debris and promoting cleaner shores. Second was community engagement, to raise awareness among local residents and visitors about the importance of responsible waste disposal and environmental stewardship. Third was personal fulfillment. Many of us felt a personal responsibility to give back to the community and make a tangible difference in preserving our natural surroundings. We successfully collected a substantial amount of litter ranging from plastic waste to discarded fishing gear, significantly improving the beach's cleanliness. Through signage, social media posts, and interactions with the passerby, we were able to educate others about the importance of reducing plastic use and properly disposing of waste. To wrap up, organizing and participating in the beach cleanup was a fulfilling experience that underscored the collective power of the grassroots efforts in addressing environmental challenges. Alright guys, this was the story. So there are few words that I'm going to explain what are the meanings of those, and for that I have to go backward. आप शायद जानते होंगे कोलैबोरेशन यानी कि साथ में मिलके काम करना। दो कंपनी अगर साथ में मिलके काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन। अंडरटुक यानी कि ट्राई करना, कोई भी काम हाथ में लेना और वो करना, ठीक है? फिर है स्ट्रेच द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन यानी कि जो समुद्र किनारा होता है वो लंबा हो, राइट? फिर है सीनिक ब्यूटी, वो तो आपको पता है। फिर लीटर यानी कि कचरा, हम बोलते हैं ना वेस्ट और जंक, या उसका अल्टरनेटिव है। फिर है डिब्री, ये एस जो है ना वो साइलेंट है, इसको क्या बोला जाता है? डिब्री। यानी कि अगर कोई भी चीज़ टूट चुकी है या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तब जो सारी चीज़ें बचती है उसको हम क्या बोलेंगे? डिब्री, ठीक है? फिर ओके, बाकी सब तो एक्सप्लेन हो ही चुका है। फिर अगर दूसरा वर्ड हम देखने जाए तो क्या है? डाइवर्स ग्रुप। तो ग्रुप तो है, पर ग्रुप में क्या है? डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग माइंड सेट वाले, राइट? फिर है कंप्राइजिंग। ये वर्ड एक्चुअली ना राइटिंग टास्क 1 में यूज होता है, जब हम पाई चार्ट पूछा जाए, अगर हम उसको लिखना हो तब,
कि 50% इज कंप्राइज्ड ऑफ दिस, यानी कि जो 50% है वो इस भाग से बना हुआ है। कंप्राइज का मतलब यही है कि इसका बना हुआ है, ठीक है। ओके, फिर है शेयर्ड कंसर्न, यानी कि जो सिचुएशन है वो सबके दिमाग में सेम चल रही थी, बोलते हैं ना सेम सिनारियो, समझ पा रहे हो, बस उसका मतलब ये है। फिर है स्पांड ओवर, यानी कि खींचना, तो ये जो क्लीन अप एफर्ट्स था ना वो वीकेंड तक खींच चुका था, यानी कि वीकेंड तक चला था। गॉट इट? ये स्पांड ओवर है एक्चुअली फ्रेजल वर्ब जो स्पीकिंग में यूज होता है, हम राइटिंग में यूज नहीं कर सकते। फिर है वर्ड्स केम टुगेदर, यानी कि साथ में आना, कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी कि सोसाइटी के जो लोग थे वो एक साथ मिलके काम कर रहे थे। रेज अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस रेज करना, वो तो आपको पता है। पर्सनल फुलफिलमेंट, यानी कि हमारा जो पर्सनल एजेंडा है, हमारी पर्सनल जो लाइफ है वो फुलफिल करना। फिर है टेंजिबल डिफरेंस, डिफरेंस तो है पर कैसा है, टेंजिबल, टेंजिबल यानी कि विजिबल, जो हम देख पाए, राइट। इसका राइट मतलब तो ये होता है कि हम उस किसी भी चीज को अगर टच कर पाए तो उसको क्या बोला जाता है, टेंजिबल। पर डिफरेंस है तो डिफरेंस कैसा है, क्लियर डिफरेंस है, तो क्लियर की जगह पर मैंने टेंजिबल यूज कर दिया। फिर प्रिजर्विंग तो आपको बताया ना कि सेव करना, हम बोलते हैं ना सेव एनिमल्स, नहीं, सेव की जगह पर कौन सा वर्ड आप यूज कर सकते हो, प्रिजर्व, गॉट इट। फिर सब्सटेंशियल अमाउंट, अमाउंट तो है पर कैसी है, सब्सटेंशियल, बहुत ही विशाल मात्रा में। फिर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड यानी कि जो चीज अभी यूज हम नहीं कर रहे, हमने हम फेंक चुके हैं या फिर हमने वो निकाल दिए, तो वो सारी चीजें कैसी हो गई, डिस्कार्डेड। एंड फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, होलसम वाला, गॉट इट। फिर ग्रास रूट्स, ये जो हम बोलते हैं ना कॉमन मैन, कॉमन मैन का अल्टरनेटिव है ग्रास रूट्स। और लास्ट वर्ड ये कहा है कोलोकेशन, चैलेंजेस, जो चैलेंजेस है उसको क्या करना, एड्रेस करना, एड्रेस यानी कि सॉल्व करना, ठीक है। तो जितने भी चैलेंजेस थे उसको हमने क्या करा, सॉल्व करा, गॉट इट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अगले वीडियो में इसी स्टोरी के पार्ट 3 के आंसर देखेंगे, पर इस वीडियो में नहीं, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो you have to comment that which word or which collocation you are going to use in your speaking practice or in your original speaking test, right? Because it is necessary to use in a speaking and a writing section as well. Okay? तो आपको 4 चीजें करनी है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, ये वीडियो को शेयर खास करके करना है और बेल आइकन हिट कर देना, ताकि ये जो पार्ट 3 का वीडियो बनने वाला है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। तो मिलेंगे पार्ट 3 के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।